Hello friends, today we will deal with the questions previously asked in NEET examinations. So first question is, this is a sequence here given and this is from the coding strand of a gene. What will be the corresponding sequence of the transcribed messenger RNA? तो यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड का एक सीक्वेंस दिया गया है और ये पूछा है कि अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2018. तो हमको यहाँ 4 चॉइस दी गई हैं. And we know that the sequence of the coding strand and the messenger RNA is the same, exception that thymine is replaced by uracil. तो यहाँ पर क्या होगा, एडेनिन की जगह पर एडेनिन ही आएगा, गुआनिन की जगह पर गुआनिन, then next guanine, and at the place of thymine uracil will be in messenger RNA, and here adenine again, then uracil, then cytosine, guanine, cytosine, adenine, and once last at the place of thymine uracil. तो हमें देखनी है ऐसी कौन सी चॉइस है जहाँ पर ए जी जी यू ए यू. दिस इज द राइट चॉइस. सो इट विल बी द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन asked in NEET 2017, during DNA replication Okazaki fragments are used to elongate. Okazaki fragments के बारे में हम बात करें तो these are short segments of DNA and firstly discovered by Hotokokis in 1968. And the length of Okazaki fragments in eukaryotes is about 100 to 200 nucleotides, and in prokaryotes these Okazaki fragments are of approx 1000 to 2000 nucleotides. डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर दो तरीके के स्ट्रैंड्स बनते हैं. एक होता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड एंड वन इज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड. तो जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं एंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड. सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, जिसमें कि शॉर्ट डीएनए के सेगमेंट्स होंगे इस तरीके से, और हर एक स्ट्रैंड पर डीएनए आरएनए प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज लोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, एंड दिस डीएनए सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन fork. So right answer is Okazaki fragments are used to elongate the lagging strands away from the replication fork. Next question asked in AIPMT 1999, the eukaryotic genome differs from the prokaryotic genome. यहाँ पर पूछा है कि यूकैरियोटिक जीनोम प्रोकैरियोटिक जीनोम से कैसे डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम जीनोम के बारे में बात करें. इट इज द टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम विच इज कैरिड आउट बाय अ सेल. मतलब टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसे हम जीनोम कहते हैं. एंड इन प्रोकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर. प्रोकैरियोट्स के बारे में आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर होता है एंड देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन्स. Histone proteins are absent in prokaryotes, whereas in eukaryotes DNA is linear and it is having double-stranded associated with histones. These histone proteins form nucleosome in eukaryotes. तो prokaryotes में DNA circular है और single stranded है. So it's the right choice. Next question asked in NEET 2018, the experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in. तो DNA का जो replication है semi conservative होता है and it was proved by Michelson and Stahl. Michelson and Stahl proved that DNA replication is semi-conservative and they proved it in a bacterium E. coli.
Next question asked in AIPMT 1995. The lake operon is an example of. तो हम ओपेरॉन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें. ओपेरॉन्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. और ओपेरॉन्स होते क्या हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स तो एक से ज़्यादा होंगे, बट दीज आर रेगुलेटेड बाय ए सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स. एक सेट ऑफ मतलब एक रेगुलेटरी जीन्स होंगे, एक ही रेगुलेटरी जीन होगा जो कि एक से अधिक स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट करेगा. And it is an example of inducible operon because in lac operon three structural genes are found: Z, Y, and A. These are three structural genes which are regulated by an operator and a regulator. यहाँ पर in lactose acts as an inducer and it is found in bacteria and E. coli. Lactoperon is an operon necessary for transfer and metabolism of lactose. It gets expressed only in the presence of lactose and absence of glucose. Next question asked in AIPMT 1996. The maximum formation of messenger RNA occurs in. And this maximum formation occurs in nucleolus. Nucleolus is the largest structure in the nucleus of eukaryotes and it is known as the ribosome biogenesis factory. Nucleolus को हम क्या कहते हैं? Ribosomal factory. Because here maximum formation of messenger RNA occurs. Right answer is nucleolus. Next question asked in AIPMT 1990. In the genetic dictionary there are 64 codons as. तो कोडॉन्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि 3 बेसेस कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, 3 कंसिक्यूटिव बेसेस. जैसे कि अगर हम बात करें AUG, दीज आर 3 बेस: एडेनिन, यूरेसिल एंड गुआनिन. दीज 3 बेसेस मेक अ कोडॉन एंड कोड फॉर अमीनो एसिड मिथियोनिन. तो एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 बेसिस चाहिए और 3 बेसिस को हम कहते हैं एक कोडॉन. सो जेनेटिक कोड के बारे में हम कह सकते हैं इट इज ट्रिपलेट. एंड जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट कोड एंड देयर आर 64 ट्रिपलेट्स विच आर कॉल्ड कोडॉन्स. जेनेटिक कोड में कितने हैं? 64 कोडॉन्स हैं. 64 कोडॉन्स. इन कोडॉन्स में से क्या रहता है कि कुछ कोडॉन्स डिफरेंट होते हैं बट दे कोड फॉर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड दीज कोडॉन्स आर नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन AIPMT 2000. इन 3-dimensional व्यू द मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफर RNA इज. tRNA को हम कहते हैं ट्रांसफर RNA. And the structure of transfer RNA can be decomposed into primary structure, secondary structure and tertiary structure. All transfer RNA have a similar L-shaped 3D structure. और इसकी L शेप होने की वजह से ही, ट्रांसफर RNA की L शेप होने की वजह से ही it can enter or it can fit into the P and A site of the ribosome. राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम में 3 साइट्स होती हैं: P साइट, A साइट and E साइट. So due to this L shape, transfer RNA can fit in P and A site of the ribosome. Next question asked in NEET 2014. Which one of the following is wrongly matched? यहाँ पर 4 choices दिए हैं: ट्रांसक्रिप्शन, writing information from DNA to tRNA. We know it's wrong because in transcription, DNA is transcribed into messenger RNA. और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर RNA, सो इट्स रॉन्ग. और यहाँ पर पूछा है हमसे रॉन्गली मैच्ड, सो इट्स द राइट आंसर. नेक्स्ट चॉइसेस को भी हम देखते हैं. ट्रांसलेशन, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन मैसेंजर RNA टू प्रोटीन. तो ये सही है. इन ट्रांसलेशन प्रोसेस मैसेंजर RNA गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. Next, repressor protein binds to operator to stop enzyme synthesis. It is also right.
लैक ओपेरॉन में हम देखेंगे कि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड कर जाती है और वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनकी ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर देती है। इसीलिए लैक जेड जो था, लैक जेड जिसका फंक्शन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस करना, एंड दिस इज स्टॉप्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। ओपेरॉन के बारे में हम देखें तो ओपेरॉन में क्या रहता है, स्ट्रक्चरल जीन्स रहते हैं, ऑपरेटर एंड द प्रमोटर। सो दिस इज ऑल्सो राइट। तो रॉन्गली मैच्ड हुई यहाँ पर दिस वाली, ये वाली चॉइस, ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू ट्रांसफर आरएनए। Next question asked in AIPMT 1998, genes that are involved in turning on or off the transcription of a set of structural genes are called। ऐसे कौन से जीन्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन ऑफ कर देते हैं, ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं? एंड दीज जीन्स आर टर्म्ड एज ऑपरेटर जीन्स। ऑपरेटर जीन्स आर ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जीन है, न्यूक्लियोटाइड होगा, सीक्वेंस है, एक रीजन है डीएनए सीक्वेंस का, विच अटैचेस टू द रिप्रेसर मॉलिक्यूल एंड स्टॉप्स द एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। जैसे कि हम लैकोपेरॉन की बात करें तो लैकोपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, जेड, वाई एंड ए, जिन 3 से प्रोटीन्स बनेंगी, एंड इट इज ऑपरेटर। So, LEC-I gene forms a repressor protein, repressor protein बनती है। In the absence of inducer, this repressor protein binds to operator। और जब ये repressor protein operator से bind कर जाती है, in that case transcription of Z, Y and A gene gets stopped। तो इसने क्या किया, ऑपरेटर पर बैठ करके, ऑपरेटर पर बाइंड करके स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर दिया, तो कौन सा हो गया, ऑपरेटर जीन। एंड व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट, जब इंड्यूसर अवेलेबल है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, इन दैट केस दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद इंड्यूसर। ये रिप्रेसर प्रोटीन इंड्यूसर के साथ में बाइंड कर जाएगी और ऑपरेटर क्या है, खाली रहेगा। So operator is not get covered by repressor protein, and in this case these 3 structural genes gets transcribed and functional proteins are formed। Next question asked in NEET 2017, if there are 999 bases in an RNA that code for a protein with 333 amino acids and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 base, how many codons will be altered? यहाँ पर पूछा है कि अगर एक आरएनए है जिसमें 999 बेस है तो 333 अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस हो रहा है। ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 बेस से एक अमीनो एसिड कोड होगी, तो अगर 999 है तो 333 अमीनो एसिड्स कोड होंगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि अगर 901 पोजीशन पर जो बेस थी उसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी अफेक्टेड, कोडॉन कितने होंगे जो कि अफेक्टेड होंगे। अब 901 बेस पर म्यूटेशन हो रहा है तो बाकी की जो बाद की होंगी वो कोडॉन्स तो अफेक्टेड होंगी, तो हम देख लेते हैं कितने कोडॉन्स अफेक्टेड हैं। सो वी विल सब्सटीट्यूट 901 फ्रॉम 999, यहाँ आंसर आएगा हमारा 98। और जैसे कि बात हुई थी कि 3 बेस कोड करती हैं एक अमीनो एसिड को, तो 98 से कितनी कोड होंगी अमीनो एसिड्स? वी विल डिवाइड 98 by 3 and we will get answer about 32 point something, that is nearly 33। So 33 codons will be altered by a mutation at the position 901। Next question asked in AIPM 2002, exon part of messenger RNA have code for। तो मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों मिलते हैं।
इंट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था, दीज आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड एक्सॉन्स आर कोडिंग सीक्वेंसेस। तो मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन्स, जो फुली मैच्योर मैसेंजर आरएनए है उसमें एक्सॉन्स मिलते हैं, एंड दीज एक्सॉन्स कोड फॉर प्रोटीन्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन asked in AIPMT 2005, E. coli cells with a mutated, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया है, it is mutated, E. coli cells with a mutated Z-DNA of the lac operon cannot grow in medium containing only lactose as the source of energy because, यहाँ पूछा गया है कि E. coli की सेल है जिसको मीडियम में ग्रो कराया जा रहा है जिस मीडियम में लैक्टोज है, बट इट इज अनेबल टू ग्रो इन द केस ऑफ म्यूटेशन इन जेड जीन। क्योंकि जेड जीन के बारे में हम बात करें तो इट ट्रांसक्राइब्स एंड ट्रांसलेट्स इनटू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। And if mutation occurs in that Z gene, E. coli cell will be unable to synthesize beta galactosidase. So, in the presence of glucose, in the case of mutation in Z gene, they cannot synthesize functional beta galactosidase. Next question asked in AIPMT 1999, in prokaryotes the genetic material is, prokaryotes में genetic material circular होता है and it is without stones. Next question, in split genes the coding sequences are called, coding sequences को messenger RNA में exons कहते हैं and non coding sequences are called introns. Next question, which of the following serves as the terminal codon? And answer is UAG. तीन codons हैं UAA, UAG and UGA. These three codons serve as the terminal codon. So right answer UAG. Next question asked in NEET 2019, what will be the sequence of messenger RNA produced by the following stretch of DNA? तो यहाँ पर DNA के दो स्ट्रैंड्स दिए हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। मैसेंजर आरएनए जो सीक्वेंस फॉलो करता है दैट इज फ्रॉम कोडिंग स्ट्रैंड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए इज द सेम एज ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्सेप्ट दैट थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। तो हम यहाँ देखते हैं थायमीन की जगह पर अगर यूरेसिल आ जाता है, एडेनिन की जगह एडेनिन, साइटोसिन, देन ग्वानिन, देन अगेन यूरेसिल। यहीं से हम देख लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसी कौन सी चॉइस है। तो यहाँ हमें मिल रहा है UACG U, अच्छा इससे बन नहीं रहा तो हमें आगे देखना पड़ेगा, UACG UACG UA। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सी चॉइस है, UACG UA। It's the second choice. So right answer is this. Next question asked in NEET 2014, transformation was discovered by, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है of the genetic alteration and it can result from the direct and incorporation of exogenous genetic material. This transformation was first time discovered by Griffith in Streptococcus, one of the bacterium. Next question, after a mutation at a genetic locus, the character of an organism changes due to change in, अगर कोई एक जीन है जिसमें म्यूटेशन हो जाता है और जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म चेंज होता है तो इट इज ड्यू टू चेंज इन, ऑब्वियसली डीएनए है उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा एंड अल्टीमेटली प्रोटीन। सो ड्यू टू द चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म चेंजेस।